kids, welcome to today's maths class and today we'll do data handling. Our objective of learning in this chapter to make pictograph and bar graph, to read pictograph and bar graph. तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे. Start with the warm up. The information collected in the form of numerical figure, उसको हम कहते हैं डेटा. किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिक फिगर की फॉर्म में कलेक्ट करना वो डेटा कहलाता है. डेटा कैन बी रिप्रेजेंट इन डिफरेंट वेज. अलग अलग वे से हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, बाय ड्राइंग द पिक्चर और बाय ड्राइंग द ग्राफ और चार्ट. फर्स्ट इज पिक्टोग्राफ. व्हेन द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पिक्चर तो उसको हम कहेंगे पिक्टोग्राफ. रिप्रेजेंटेशन और द पिक्टोग्राफ. सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन द पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. Symbol may represent more than one item of data, so the key is used to represent these items. Observe the given pictograph, which shows the number of students present in the class for a week. So 1 week में अलग अलग डेज पे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे. Here one picture, हमने की ली है, 1 पिक्चर 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. सो मंडे अगर देखें तो 4 पिक्चर है, मीन्स 40 स्टूडेंट. ट्यूसडे 5 है तो 50 हो जाएंगे. Wednesday 40, Thursday 20 and Friday only 10 students. So read the pictograph and answer the following question. The total strength of the class is 50. Then the number of students absent on the Monday, because total 40 student थे और strength है 50, तो 10 student absent हो गए. The maximum number of students took leave on Friday because only 10 students were present. On Monday and Wednesday an equal number of students took leave. On Tuesday the maximum number of students were present. The attendance in the whole week, सबका total करेंगे, that is 160. Next is exercise 16a. A pictograph below shows the color of some balls and the number of students who like different colors. Observe the pictograph and color the rectangular accordingly. So यहाँ पे अलग अलग कलर दे रखे हैं आपको, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक. सो अगर रेड को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप 9 बॉल ड्रॉ कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ब्लू 5 है, यू विल यूज द कलर अकॉर्डिंगली. ब्लू के लिए ब्लू कलर यूज करिएगा. 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 3 4 5 6 7 and 3 black. Now answer the following question. अब आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है. Which color is liked by the most? Red color, because सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने कौन सा कलर लाइक किया? Red color. Which color is likely by the least number of students? That is black color. Only 3 students like. Which color is liked more, blue or green? अगर blue और green की बात करें तो green is liked more. How many children were asked in all? तो टोटल कर देंगे हम 9 + 5 + 7 + 3, 10 5 15 20 24. टोटल हो जाएंगे 24 स्टूडेंट. क्लियर? सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे. नेक्स्ट इज बार ग्राफ. Sometime it become difficult to represent every data pictorially, because data कई बार बहुत बड़ा होता है तो उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कन्वीनियंट नहीं होता. We can also represent such type of data in the form of graphs and chart. One such type of data representation is the bar graph. Bar graph has horizontal और vertical columns. bar graph में horizontal या vertical column होंगे जो कि equal weight के होंगे. A bar graph is a pictorial representation of data with the bars of equal width drawn horizontally or vertically. A bar graph has a scale. bar graph की अपनी scale होगी, उसके according जो है हम उसे draw करेंगे. It's shown how many are being talked about for the unit scale. The bar graph can show more than one quantity at a time by using the bar of the different types of color. So there are 2 types of bar, horizontal and vertical bar graph. तो सबसे हम पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की. द फॉलोइंग ग्राफ शो द मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, यहाँ पे हमने
ये वर्टिकल एक्सेस पे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स लिए एंड यहाँ पे मार्क्स लिए हैं. सो हिंदी में अगर आप देखें तो ये हो जाएंगे 70. क्लियर. एसएसटी में अगर देखें तो 40 है, मैथ्स में 80, इंग्लिश में 50 एंड साइंस में 60. यहाँ पे हमने जो स्केल ली है दैट इज 1 स्क्वायर बॉक्स 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आप देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस है. स्केल हमने जो ली है 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स. सो 0, 10, 20, 10-10 का डिफरेंस. द लेंथ और द हाइट of each bar represent the size of each group. It is commonly known as frequency. So, in which subject the marks highest? Maths में सबसे ज़्यादा है. How many marks did the student score in Hindi? हम देख के बता सकते हैं 70. What is the difference between the mark in English and Science? उसका difference हो जाएगा 10. In which subject is the mark lowest? सबसे कम है SST में. Next is vertical bar graph. Example लेते हैं. The bar graph shown the number of appliances sold by the shop in the month. Read the bar graph, answer the question. So here on horizontal axis हमने अलग अलग appliances लिए हैं and vertical axis पे हमने लिया है number of appliances sold. Clear? So हम scale लेंगे, उसके according इसको draw करेंगे. So which appliances was sold in the maximum number? अगर maximum number की बात करें तो टीवी सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? टीवी की. टीवी का जो बार है सबसे ज़्यादा हाइट है. सो मैक्सिमम हो जाएगा. विच 2 अप्लायंसेस आर सोल्ड इक्वली. इक्वली अगर हम देखें तो माइक्रोवेव ओवन एंड फ्रिज. क्लियर. मिनिमम जो सोल्ड हुआ है वो कौन सा है? दैट इज वॉशिंग मशीन. हाउ मैनी मोर म्यूजिक सिस्टम वॉज सोल्ड देन AC. सो म्यूजिक सिस्टम की बात करें ये है और AC ये है. अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे सो दैट विल बी, बिकॉज म्यूजिक सिस्टम है 30 एंड AC 20, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 10. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ बार ग्राफ. किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ऑल बार्स आर ऑफ सेम विड्थ एंड आर इवनली स्पेस्ड. जितने भी बार ग्राफ होंगे उनकी जो विड्थ होगी सेम होगी और उनके बीच का स्पेस इक्वल होगा. लेबल वॉट ईच बार रिप्रेजेंट. आपको रिप्रेजेंट करना है कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं एंड आपको एक स्केल लेनी पड़ेगी. लेंथ ऑफ द बार इक्वल टू द नंबर ऑफ डेटा आइटम. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ बार ग्राफ की बात करें तो एडवांटेज क्या होते हैं? बार ग्राफ आर इजी टू ड्रॉ एंड रीड टू अंडरस्टैंड एंड कंपेरिजन. हम इजीली बार ग्राफ का यूज करके कंपेरिजन कर सकते हैं डेटा का. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 16B. Use the bar graph given below and answer the following question. So here is a bar graph जिसमें मैथमेटिक्स टेस्ट के स्कोर है. वर्टिकल एक्सिस पे हमने स्टूडेंट्स लिए और यहाँ पे मार्क्स. हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन द टेस्ट. हाईएस्ट मार्क्स किसने किए? वीना ने. हु स्कोर द लोएस्ट मार्क. लोएस्ट मार्क्स की बात करें तो श्रुति ने किए हैं. डिड एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन द सेम स्कोर. हु वर दे. सेम स्कोर की बात करें तो वर्षा एंड सुधा के सेम स्कोर है. क्लियर. व्हाट स्कोर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच स्क्वायर. सो अगर ईच स्क्वायर की बात करें तो 10 का जो है स्कोर बता रहा है. क्लियर. इस तरीके से आप ये कंप्लीट टेबल यहाँ पे करेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे. तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे चैप्टर एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया है. नाउ यू टू प्रैक्टिस इट.